गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ଅଜ୍ଞାନର ସାତଟି ଅବସ୍ଥା। सूर्यकांति दरवाजा खोलो। हरिओम स्वामी जी। कौन कौन कुह सातटी अवस्था? अज्ञान, आवरण, विक्षेप, अपर परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, शोक निवृत्ति, तृप्ति। गुड, वेरी गुड। तो काली हम माने 33 रे एटा तो न देखी कहलु है ना कि ना देखी कहलु? हरिओम स्वामी जी देखी कही ओ तीन टा मन थिला और चार टा मन न। ए तीनटा होची, प्रथम तीनटा होची बंधनकारी बंधन, आउ अन्य चारिटा होची मुक्ति हैला। सेमती योग वशिष्ठ अनुसार सातटा भूमिका अच्छी, चलियो देखी को। शुभेच्छा, विचारणा, तनु मानसा, सत्वापति, असम शक्ति, पदार्थ भावनी, तुरियगा। या तुरीय गए या तुरीय अवस्था। योग वशिष्ठ तुरीय गा शब्द कहते एंड आमर मांडुक्य रे तुरीय शब्द बा अन्य सब तुरीय शब्द चतुर्थम मान्यते तु। फाइन। तो 33 नंबर रे ये सातटा जाक क्रम रे कहीदेले अज्ञान आवृत्ति माने आवरण, तद द्विविध विक्षेप दी प्रकार विक्षेप को आयतला। चलो परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान 5 है गला। 6 शोक मोक्ष, शोक निवृत्ति को शोक मोक्ष कहगला। एंड निरंकुश तृप्ति जानी बुझी के एडजेक्टिव दे दौन तृप्ति रे। ये भोजन कले भी तृप्ति मिलूची, शोष हो तो पानी पीले भी तृप्ति होची, गरम लगुव एसी भितर रहिले भी तृप्ति होची, कौन से जिनस देखले पहाड़ गले बरफ देखले। अब ये गरम हो बहुत लोग जाती कुल्लू मनाल से एत ट्राफिक हो जाए सैटरडे संडे बहुत भीड़। हाँ हिमाचल तो ताको भी तृप्ति कहती किंतु कौन निरंकुश तृप्ति न से आसला पड़ेगा, किंतु आत्मज्ञान रे ही निरंकुश तृप्ति। तो ये बतेले द्विविध विक्षेप कही देते। तो आवृत्ति एंड दी प्रकार के विक्षेप हो तो गोटे हूँ असत्व पादक आवरण, दी प्रकार आवरण द्विविधा, द्विविध विक्षेप पाई नुह आवरण पाई। आ गोटे हूँ अभान पाद। असत्व पाद कौन? परमात्मा नहीं, ये हूँ असत्व पाद। परमात्मा को मुझे जानूनी अभान पादक। तो सप्तावस्था 34 रे सप्तावस्था इमा सन्ति चिदभासस्य तासु इमो, तासु इमो ए भितरे बंध मोक्ष स्थित। ये दीचा जाक बंध मोक्षकारी बंधन मोक्ष रहे। तत्र तिस्रो बंध कृता स्मृता। प्रथम 3टा बंधन वाला आउ 4टी मोक्ष वाला। तो आम विद्यारण्य का ना ही कही दौचु कि रियली भारती तीर्थ गुरु ना हम। किंतु भारती तीर्थ मध्य एते गुरु विनम्रता बा जेते हेले मो शिष्य लिखी आरंभ कर शरीर
ସମାଧି ଯୋଗ ଲେଖିପାରିନି। ଯଦିଓ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟର ନାଁ ହିଁ ଦଉଛନ୍ତି, ନିଜ ନାଁ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇତିହାସ ଖୋଜାଗଲା, ଖଞ୍ଜାଗଲା କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଭାରତୀ ତୀର୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମିଳିଲା କିଛି ପଏଣ୍ଟରେ, ତାହା ପରମ୍ପରାରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ କୁହାହେଇଥିଲା କି ବିଦ୍ୟାରଣ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବେ ଆଗରୁ, ଏହା ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ ସେ ଲେଖିଦେଲେ। ଯେମିତି ପଦ୍ମପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟର ପଞ୍ଚପାଦିକା ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଉପରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜି 20 ତାରିଖ ନା, କାଲି 21 ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଅଛି। ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅଛି ଘର ଘର ମେ ଗୀତା, ତ ମୁଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପରେ ହିଁ କହିବି କାଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାଲି ରାତିରେ ମିଳିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଣ ମିନିମମ୍ 20-25 ମିନିଟ୍ ପ୍ରବଚନ ଦେବି। ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅବତାର ହିଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସିଏ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତେ। ସାରା ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ନା ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ। ବେଦ ବ୍ୟାସ ଜି ଲେଖିଦେଲେ, ଫିର କହିଲେ ଆରେ ଏ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି। ଫିର ଆଉଥରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଆସିଲେ। ତ ସେଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ, ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମଧ୍ୟ କି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗା ନା କାଲାଡି କେରଳ, ଆଉ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଜାଗା ସେ ହଉଛି ଭେଲିଆନାଡ, 50 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଆମ ଓଡିଶାରେ ବି ହଉ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବି, ଯେତେବେଳେ ମା ମାନେ ବହୁ ଗର୍ଭବତୀ ହୁଏ ନିଜ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲରେ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ମା ଝିଅ ପାଇଁ ଯେତିକି କଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେବା କରିପାରିବ, ଶାଶୁ କରିପାରିବନି। ବହୁତ ରେୟାର ଯୋଉ କି କୌଣସି ଶାଶୁ କହିଲେ କି ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ମା କୁହନ୍ତୁ, ମତେ କେତେ ଜଣ କୁହନ୍ତି, ଫାଇନ। କିନ୍ତୁ କାରଣ ମା ନାହାନ୍ତି, ଶାଶୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ମା କୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶାଶୁ ଆଉ ମା ସାଥିରେ ରହିବେ 15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷରେ, ନିଶ୍ଚୟ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଝୁକାପ ରହିବେ, ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯଦି ଝୁକାପ ରହୁଛି, କିଛି ଖରାପ ବି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବହୁତ ରେୟାର ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବେ, ହଁ, ଯିଏ ଶାଶୁଙ୍କୁ ବି ମା ବୋଲି ଭାବିବ, ବୋଧେ ମାତା ସୀତା ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ଯିବା ନାହିଁ। ମେନଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ତାକୁ ରିଏଲି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କହନ୍ତି, କାରଣ ସେଟା ମାଙ୍କ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ବାପାଙ୍କର ଜାଗାରେ ହିଁ ମାନାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କଣ, ଆମେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁ ବି ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ, ବାପାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯଦିଓ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ମାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ମାସଟେ 2 ମାସ 3 ମାସ ପରେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ଆଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କାର ବାପାଙ୍କ ଜାଗାରେ ହୁଏ, ଠିକ। ତ ଭେଲିଆନାଥ ସେଇଟା ନମ୍ବୁଦ୍ରି କହନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ନମ୍ବୁଦ୍ରି। ଆମର ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଣ୍ଡା କହନ୍ତିନି, ହଁ, ପଣ୍ଡା ଆମର ମନ୍ଦିରର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପଣ୍ଡା, ସେମିତି ନମ୍ବୁଦ୍ରି କହନ୍ତି। ତ ନମ୍ବୁଦ୍ରି ର କମିଟି ବା କୋଉ ପରିବାରର ପାଖରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ଥିଲା। ମିନିମମ୍ 35-40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଓଜଡ଼ା ହଉଛି, ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ହିଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଛି। ଦେନ୍ କେରଳରେ ତ ଗୁରୁଦେବ ଥିଲେ, ଆଉ ଦେନ୍ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ମିଶନକୁ। ଇଏ ଦେନ୍ ଗୁରୁଦେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର, ସଂସ୍କୃତର ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀ ସଂସ୍କୃତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କୋଲାବୋରେସନରେ ଚାଲିଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବି ହେଲାଣି, ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶ୍ରମ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେ ଅଗଣାଟା ଯେମିତି ସେମିତି ରହିଛି, ସେ ଯୋଉ ଘରଟା ଯୋଉଟାରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଅଗଣାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତକର୍ମ ଆଦି ସବୁ ହେଇଥିବ, ସେ ଘରଟାକୁ ଯେମିତି ସେମିତି ରଖା ହେଇଛି। ଦୀପ ଟିକେ ଜଳୁଛି, ଲାଇଟ୍ ବି ଅଛି, ଯାଇକି ମେଡିଟେସନ ଯେମିତି ଉତ୍ତର କାଶୀରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। କେତେ ଜଣ ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ କରନ୍ତୁ। ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ସେଇଠି ମୁଁ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ନେବି, ମେଡିଟେସନ ଆଦି ସବୁ କ୍ଲାसेସ୍ ହବ, ତାପରେ 3 ଦିନ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ହବ।
एलेपी आदि गुरुवायर एंड समथिंग मंदिर कोचिन, ये शंकराचार्य बर्थ प्लेस है। तो अम, खाली विद्यारण्य से शंकराचार्य परंपरा रे तो आम विद्यारण्य कौ बा भारती तीर्थ कौ किसी असुविधा नहीं है। तो बर्तमान कौन देख गोटे गोटे बुझौची सातटा जो अच्छी। अच्छा ना तो गोटे गोटे बुझौची। फर्स्ट हूँ अज्ञान, सेकंड आवरण, थर्ड विक्षेप। बस एतिकी बर्तमान जाओ गोटे गोटे। तो 35 रे अज्ञान विषय बुझाऊँ अज्ञान कौन न जाना मृत्युदासीन न जानामीत्युदासीना व्यवहारस्य कारणम् व्यवहारस्य कारणम् विचार प्रागभावेन विचारप्रागभावेन युक्तमज्ञानमीरितम्। युक्तमज्ञानमीरितम्। अज्ञान कौन परिभाषा बड़ा सुंदर डिसेक्शन कर कहते फर्स्ट हूँ व्यवहार से कारण, व्यवहार कारण ही अज्ञान जो ही व्यवहार। अच्छा व्यवहार स्वतः रूप से खराब नुह कि व्यवहार जदि दुख दूची जान अज्ञान। आओ कहते देखो ये गोटे इंटरेस्टिंग अज्ञान परमानेंट नुह। अज्ञान जदियो अनादि केबे आस्य आमे कहि परिबानी, किंतु आत्मज्ञान कले विचार कले चली जीव से विचार न सहते माया ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି अज्ञान ପାଇଁ विचार ये सहन न କରି ନ ପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି न जानामि इति उदासीन माने ମୁଁ ଜାଣୁନି। ये जो उदासीन व्यवहार ମୁଁ जानी पारनी एक्टिव व्यवहार नो उदासीन व्यवहार माने विथड्र कर दଉଛି माइंड टा ମୁଁ तो ଜାଣିନି ना। ଯେମିତି କ फ्रेंच भाषा जଣା ଅଛି, इटालियन भाषा जଣା ଅଛି ना, उदासीन व्यवहार है गला ना। तेणु जो उदासीन व्यवहार कि मु जानिनी अहम न जानामि। अच्छा अहम न जानामि कहला पर आउ प्रोएक्टिव हबनी उदासीन व्यवहार अर्थ से जोटे टिके जानुछ प्रवृत्ति अच्छी सेठ व्यवहार हो। तो ये कैसा केमतिया व्यवहार उदासीन व्यवहार। अच्छा सेकंड रियल व्यवहार हो विक्षेप जो। तो व्यवहार पाई दीटा कारण दरकार गोटे अच्छे अज्ञान आवरण भी दरकार विक्षेप भी दरकार तीनटा जगह ये व्यवहार पाई हम डिग्री रे डाइल्यूटेड फिर कंसंट्रेटेड सुपरलेटिव ता पूर्व कंपैरेटिव डिग्री ये हुए जेंति बैड वर्स्ट वर्स्ट गुड बेटर बेस्ट सेमती शब्दटा चयन केते सुंदर करछन देखंतु विचार करिवे तो जेंति जतले अज्ञान हो ना मनुष्य एते व्यवहार कर परिबनी सेते उदासीन व्यवहार। उदासीन व्यवहार माने इनडायरेक्ट व्यवहार पेसिव व्यवहार उदासीन अर्थ पेसिव एक्टिव नहीं मु जाना मी हेनी ना कारण अज्ञान स्टार्ट हो गला देन आवरण आसो देन विक्षेप रे करिवो एक्टिव विक्षेप रे पूरा एक्टिव करिवो मु कर्ता भोक्ता आदि एक्टिव हो खाली रस्सी मु जानुनी बस उदासीन आ किछ ना रस्सी मु जानुनी किछ असुविधा भी नहीं कि जिते मु रस्सी जानुनी सर्प जानुची देन एक्टिव आसला भय आसगला छानिया आसला दौड़िला बहुत किसी। तो न जानामि तो उदासीन व्यवहार कारण ये और विचार प्राक अभावेन
ଆତ୍ମବିଚାରର ପ୍ରାକ୍ ଅଭାବ, ଆତ୍ମବିଚାର ହେଇନି ସେଇଟା ଥାଉଛି ପ୍ରାକ୍ ଅଭାବ। ଅଜ୍ଞାନ କଣ? ପ୍ରାକ୍ ଅଭାବ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଆବରଣ ବିକ୍ଷେପ ହେଇନି, ମାନେ ଆତ୍ମବିଚାର ପ୍ରାକ୍ ଅଭାବ କୁହାହବନି, ମାନେ ଆତ୍ମବିଚାର ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉଟା ଥିଲା, ଏମିତି ଅର୍ଥ। ଠିକ ସେ ବୁଝନ୍ତୁ, ନାଇଁ ତ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେନି, ଫିର ମତେ ପଚାରିବେ। ଅର୍ଥାତ ଆତ୍ମବିଚାର ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ରହିବନି, ସେ ପ୍ରଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ସେ, ହେଲା। ତେଣୁ ଆତ୍ମବିଚାର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ରହିବ। ବିଚାର ପ୍ରାକ୍ ଅଭାବେନ युक्तम ଯୋଉ ଯୋଡା ହଉଛି ତାକୁ କହନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ। न जानामि इति भावना ଯାହାର କାରଣରେ ଉଦାସୀନ ବ୍ୟବହାର, ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ବ୍ୟବହାର ହୁଏନି, ଆଉ ଆର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ଅଜ୍ଞାନର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଚାର ପୂର୍ବରୁ ଥାଏ। ବିଚାର ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରାଗ ଅଭାବ ରୂପରେ ଥାଏ। ଦେନ୍ ଅଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆବରଣ ହେଇଯିବ, ବିକ୍ଷେପ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଭାବ ରୂପରେ ଥାଏ। इसलिए भाव रूपम କୁହାଗଲା ତତ୍ତ୍ୱବୋଧରେ ଅଜ୍ଞାନର ପରିଭାଷା। ଏ ଭାବ ରୂପ, ଅଭାବ ରୂପମ ନୁହଁ। ଅଭାବ ହେଲେ ତ ତକଲିଫ ଦେଇ ନଥାନ୍ତା। ବନ୍ଧ୍ୟା ପୁତ୍ର କେବେ ତକଲିଫ ଦିଏ? ନାଇଁ ନା। ମୁଁ ଗୋଟେ କାଲି ରିଲଟେ ଦେଖୁଥିଲି, ଆମ ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ସମାଜରେ, ଭାରତର ସମାଜରେ, ଓଡ଼ିଆ ହଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟରେ, ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି ଲାଗିଲା। ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବୋହୂ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଶାଶୁ କହୁଛି ତୁମ मैं खोल रही हूँ। ଖୋଲିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ସେ ଯୋଉ କିନ୍ନର ମାନେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି, ବड़ा ନେଟୱାର୍କ ସେମାନଙ୍କର ତଗड़ा ରିଏଲି, ଭିତରେ ବି ବସନ୍ତି ତ ବି ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଜିକାଲି ତ ଆହୁରି ସହରରେ ବड़ा ମୁସ୍କିଲ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେମାନେ ମାଗନ୍ତି ବି ପଇସା। तो से जाहू बस मांगिले कि दुआ देते हैं तुम्हारा पुओ हबो। देन ये सासु ठीक कड़क करी कहला, पैसा देला, कहले कि पुओ हेले ही दुआ दब, झील हेले दुआ दबनी, कहीं तुमर पात्र अंतर ये भाषा। सी अलग भाषा कहले, मु मोर भाषा कहूँ। स्टन हो गला ये किन्नरटा, एमती पर्यंत कई कही ना, सेकेंड समस्ते ही चाहते पुओ 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 पुओ। से नेला चुप रहा। रील तैयारी होचे ना, बड़ा सुंदर स्टाइल रहे। देन सतरे झीटी होगला। जो झीटे होगला खोलला, सासू खोलने, देन कहले कि संगे संग कहले अच्छा हुआ से शाशुटी कहले झील कन्या रत्नटी है, आ निश्चय मु सेतବେଳେ जो ଦେଇଥିଲି ତାଠୁ ଅଧିକ ଦେବି କହିକି ବାହାର କର। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ, किन्नर कହୁଛି नहीं, आज मैं लेने के लिए नहीं आई हूं, कन्या बेटी को मैं देने के लिए आई हूं। तो हाथ रे बढ़ेगा। देन ये टिके निश्चय प्यार करके कहले तू ही दे दे कन्या को। देन कन्या हाथ रे देला, एमती एमती करते ना, ହେଲା ब्यूटीफुल। आम मान को अंध विश्वास, कुसंस्कार कि पुओ हेले ही हमको श्राद्ध दब, झील हेले दे पारिबनी। अरे श्राद्ध पुओ दब लिखाई, पुओ जदि नथिबो कि अनेक भाई भी दे पारिबो, पुत्र भी दे पारिबो, बहुत लोग दे पारिबो, शास्त्र ही अच्छी। तुम्हें जो शास्त्र को नहीं कि कौच कि नहीं पुओ हेले ही चिताग्नि दब, अरे से ही शास्त्र ही लिखाई कि पुओ जदि नथिबो, कारण शास्त्र जानी ना समस्त पुओ बोले किसी माने नहीं,
आप अल्टरनेटिव भी कर आमे शास्त्र ना अधा जिनस नौଛୁ ଆଉ ଆମ ବହୁତ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସମାଜରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ହବନି, ରିଜିଡ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ତ ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ନରର ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ଶରୀର ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ପତ୍ରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି କି? ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ନର ଆସିକି ଗାଳି ବି କରନ୍ତି, ପଇସା ନଦେଲେ ଗାଳି କରନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ପତ୍ରର ଅଛି କି ଅସ୍ତିତ୍ୱ? ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟା କହିଲି। ବନ୍ଧ୍ୟା ପତ୍ରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ବନ୍ଧ୍ୟା ପତ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ମାନେ ହଇରାଣ କରିବନି, ଅସତ୍ ସିଏ। ସେମିତି ଅଜ୍ଞାନ ଅସତ୍ ଭଳିଆ ନୁହଁ। ହୁଁ। ଅଜ୍ଞାନ ଭାବ ରୂପ, ଅଭାବ ରୂପ ନୁହଁ। ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ଦିଟା ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଦବ, ଆବରଣ କରିଦବ ଏବଂ ବିକ୍ଷେପ କରାଇଦବ। ଫାଷ୍ଟ ଅଜ୍ଞାନ, ଦେନ୍ ଆବରଣ ବିକ୍ଷେପ। ମାନେ ଅଜ୍ଞାନର ଦିଟା ଶକ୍ତି, ଆବରଣ ଶକ୍ତି, ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତି। ଆଉ ରଶ୍ମିରେ ସର୍ପ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ପ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମକୁ ଆବରଣ ଯୋଗୁ ବିକ୍ଷେପ ହେଇଗଲା। ଦୌଡୁଛୁ ଆମେ, ଖମ୍ବରେ ଭୂତ ଦେଖିବା, ନାହିଁ ସେ ଭୂତ, କିନ୍ତୁ ଭୟ ମାନେ ପସିନା, ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଉଛି, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି। ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା, ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନ ଜାନାମି ଇତି, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବନା ଉଦାସୀନ ବ୍ୟବହାରର କାରଣ। ମୁଁ ନ ଜାନାମि यही है उदासीन व्यवहार कारण। व्यवहार एक्टिव नो, एक्टिव व्यवहार विक्षेप कारण। और विचार प्राग अभाव न, विचार पूर्वर से रहिब, विचार हो गला पर आउ रहिबनी, पळेबो। ए शब्दटा को इम्पोर्टेंट, विचार प्राग अभाव न, विचार पूर्वर से अच्छी प्राग भाव। ठीक। तो ये जानो, तो गोटे नंबर कहले सातटा, गोटे गोटे बुझे। तापर आरंभ हो अज्ञान पर आवरण विक्षेप। विक्षेपर एग्जाम्पल बताऊँ, मम देह मम प्राण मम चित्तम च धीर मम सुखम ममेति यो व्यक्ति स कस्त्वमिह नोत्तर। मनुष्य निज विषय से भावुची, मोर शरीर, मोर घर, मोर पत्नी, मोर बुद्धि, मोर सुख कौची। मम देह मो प्राण मम चेतम च धीर्मम सुखम ममेति, मोर सुख मोर दुख। यो व्यक्ति जी जानुची सी किए, तार कौन से उत्तर आउ ना, बस यहाँ न जाना ही अज्ञान। मम देह मम प्राण मम चित्तम च धीर्मम सुखम ममेति यो व्यक्ति स कस्तुम यह न उत्तर। हेले मु किए, मु समस्त जानूची, मोर पत्नी मोर शरीर मोर धन, मु किए एटा न जानिबा ही अज्ञान। अज्ञानी किए, आई डोंट नो दैट आई डोंट नो, एटा मु जानिनी। जिज्ञासु किए, आई नो दैट आई डोंट नो। ज्ञानी किए, आई नो दैट आई नो। न उत्तर, किसी उत्तर नहीं तो अज्ञान हो गला। तो ये
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆगे କହୁଛନ୍ତି 36 ରେ ଆବରଣ ବିଷୟରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନ, ସେକେଣ୍ଡ ଆବରଣ। ଅମାର୍ଗେଣ ବିଚାର୍ୟାଥ अमार्गेण विचार्यथ नास्ति नो भाति चेत्यसौ। नास्ति नो भाति चेत्यसौ। विपरीत व्यवहृतिः विपरीत व्यवहृतिः आवृते कार्यमिथ्यते मिष्यते। आवृते कार्यमिष्यते। अमार्गेण विचार्य, अमार्ग माने जो मार्ग विचार करिवार मार्ग अछि ता न करके अमार्ग रूपरे विचार करिके ମୁଁ କୂଟସ୍ଥ ନୁହଁ ବା କୂଟସ୍ଥ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କୂଟସ୍ଥକୁ ଜାଣୁନି। ଅମାର୍ଗେଣ ବିଚାର୍ୟଥ ନାସ୍ତି नो ଭାତି। नो ମାନେ ନାହିଁ, नो ମାନେ ଇଂଲିଶ ନାହିଁ ନାହିଁ। नो नो के, नो नो चेति केन उपनिषद ରେ ବି ଅଛି। नो ମାନେ न, न। असौ, च इति असौ, च इति असौ। व्यवहार विपरीत व्यवहार, प्रथम कौन कहला? उदासीन व्यवहार। और ये कहते विपरीत व्यवहार। आवृत्ति आवरण स्वरूप, आवरणर स्वरूप एवं आवरणर कार्य विपरीत व्यवहार हो। आवरणर कार्य स्टार्ट हम विक्षेप हो। आवरण है माने विक्षेप। आवरण को ही कहते नॉन एप्रेंशन और विक्षेप को कहते मिस एप्रेंशन। तो ये आवरण अर्थात परमात्मा को न जानिया नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्नी नेत्र सुविज्ञाय पृष्ठ या त्वमाप सत्यधृतिवतासि त्वां दृग्नो भूयान्नचिकेतः पृष्टा। कठोपनिषद अच्छे इसी लोग को न ऐसा तर्केण मतिरापनेय, परमात्मा को जानते नहीं, अवैदिक भेदवाद द्वारा प्रतिपादन करते। परमात्मा नहांती, अस्तित्व नहीं एमती भी कहते। विषय बुद्धि रे रहंती, किछि टिके विचार के करके कह दियंती कि परमात्मा अछंती कि ना। परमात्मा नहांती, परमात्मा देखा जाना। तो सी होची आवरण, अर्थात परमात्मा नहांती ଆଉ परमात्मा भाषित होनांती, ता होची आवरण। एंड आवरण दी प्रकार कहला, असत्व पादक, अभान पादक। परमात्मा नहांती असत्व पादक, परमात्मा देखा जाऊनांती, अनुभव होनांती अभान पादक। अभान असत्व, सत्व सत्वांश, अभान भानांश। अस्तित्व एवं परमात्मांकर भानत्व, अनस्तित्व अभानत्व। ताको जदि सिंपल सत और चित तार अपोजिट। परमात्मा अस्ति अच्छी सत, परमात्मा भान अच्छी चेतन स्वरूप चित। कुमार्ग शब्दटा कौन कहगला मन रखता 36 रे। अमार्गेण, अमार्ग माने विचार करे मध्य, मार्गेण शब्द अच्छी ना उपदेश सार रे भी अच्छी। मार्गेण मार्गणे कृते, मार्गणे कृते माने विचार, यही मार्ग विचार कले
तो वेदांत ही एकमात्र मार्ग, वेदांत मार्ग ही वेदांत मार्ग को छाड़देले बाकी सब विपरीत विचार करते, शरीर को नहीं कि विचार करते, शरीर को नहीं कि विचार करियो तो गलत ही जीवन। मुझे कहानीटा कहीं मन अच्छे, को कहानी गोटे चिंटी चीनी पाखरे रोला, बहुत मोटी थिला सी, आ गोटे चिंटी नमक पाखरे रोला, निश्चय ही पतला थिला। मॉर्निंग वॉकिंग करथले, भेटा भेटी हो गले। जे मोटी चीनी, मोटी चिंटी पिंपुड़ी, से देखई हम मु देख मु गोदाम रे अच्छी खाऊची पीऊची मो पाई रोक टोक किसी ना, देखला गोटे पतली धीरे धीरे वॉकिंग कर सिस्टर कुआडे जाऊच, कहीं एत पतला पतला हो कौन कर घर टा एमती आ गोदाम रे जो अच्छी, कम कम आज आज संध्या आसी जाओ मो पाख, मु ते खुआई चीनी कौन जाने कौन नमक रही। अब ये गला ये नमकीन वाली चिंटी खाइला एंड आसिला, राति हो गला, बहुत समय खाइला। मॉर्निंग अगेन नेक्स्ट डे पचारे हाउ डू यू लाइक, केमती लगिला तुमको चीनी, कहला कि एते मजा तो आसलानी कि लुण लुण लगुला, एमती केमती हम, अरे बाबा चीनी रे लुण आसला केमती, एम केम तोर अनुभव होला ना, घटनाटी कौन है कि मत डाउट लगे कि चीनी मिल कि नहीं, फर्स्ट टाइम जाऊँगी डिनर तो तुम पाखे करी फिर ये करें, तो से मु कौन करी मो मुहरे टे लुण रखिदे, कहानी इम्प्राक्टिकल, जस्ट गोटे बुझापी, तो लुण रखिदे भल, लुण जदि रखी तो चीनी स्वाद तो पूर्ण रूप से पाइपर, सेमती आम शरीर को जदि तादात्म्य कर जिते विचार करवा मार्ग करवा तो द्वैत ही रही, शरीर को नहीं कि तुम कर, तुम जीवात्मा मानिकी कर, वेदांत जीवात्मा मानिकी करूनी, वेदांत लुण को हटे कि कर, बाकी सब लुण को नहीं कि कर, तो कहाँ गोटे चीनी स्वाद पाइबे। तेणु ये अमार्ग, वेदांत मार्ग ही एकमात्र मार्ग। और अनुभव विपरीत कथन, ब्रह्म ईश्वर पता नहीं अच्छा कि नहीं दे, मु हूँ जीवात्मा, ईश्वर होचंते सर्वसमर्थ, मु हूँ अल्प समर्थ, ये केवल समान ही पारे कि, तो विपरीत कथन आवरण और कार्य। बर्तमान नेक्स्ट श्लोक रे 37 रे विक्षेप पूछ, तीन टा ना, अज्ञान आवरण विक्षेप। आवरण कौन घोड़े दियंती, मु ब्रह्म एटा घोड़े दिए, चीनी टा कौन कला घोड़े देला, ए लुण टा कौन कला घोड़े देला चीनी को, लुण जोगु चीनी स्वाद आसलानी घोड़े देला। बर्तमान आप देखुं ना ना, हाँ स्पष्ट प्रतीत हो, बर्तमान देखिए कि नहीं कौन है गला, आवरण है गला, गोटे टावलटा आसला आवरण। देन विक्षेप कौन हम जानी ना, मुझे मजार बुझे कहूँ, पता नहीं स्वामीजी कौन गोटे खाइले बोधे से एमती करदे, ये गोटे कल्पना ही पारे, बोधे नाकरे एमती देवार थिला से एमती करदे, ये गोटे विक्षेप हो गला, बोधे आ स्वामीजी को आसुनी, बोधे बही देखा चाहिए, ये गोटे विक्षेप हो गला। तो आवरण संगे संगे विक्षेप कर, आपण मान जानी मो ये विक्षेप करेबेनी, किंतु जी जानी, कारण जानी तो फिर आवरण हबनी कि विक्षेप हबन ना, न जानी विक्षेप हम, आमको बुझापी कर जानीदे आप देन आवरण हबनी कि विक्षेप हबनी, आवरण हेले दुख ना, जो जानवे असुविधा ना, बाह्य दृष्टि आवरण हम दुख हबनी,
न जानले ही आवरण ही दुखर कारण है जो विक्षेप है। एंड आवरण विक्षेप समय लगे ना आज आवरण है काली जाके विक्षेप हम ना तुरंत सांगे सांगे रस्सी देखिए नहीं एमती हबनी रस्सी देखिए ना साप देखिए फटाफट तात्कालिक कहते तात्कालिक मैंने सही समय ये नुके सामयिक ये नुके पोरे सांगे सांगे तो वर्तमान विक्षेप का कहते देह द्वय चिदाभास देहद्वयचिदाभास रूपो विक्षेपयेरितः रूपो विक्षेपयीरितः कर्तृत्वाद्यखिल शोकः कर्तृत्वादखिलशोकः संसारख्योऽस्य बन्धकः संसाराख्योऽस्य बन्धकः। बंधन रहे तो च संसार नामक कर्तृत्वादि समस्त शोक ए चिदाभासर कार्य विक्षेप कौन ना आवरण जतले ହେଇଗଲା कि ମୁଁ କୂଟସ୍ଥକୁ ଜାଣୁନି କୂଟସ୍ଥ ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ହବ ତାହେଲେ ତୁମେ କିଏ ତାହେଲେ ଖାଲି ବସି ପାରିବନି କିଏ ତାହେଲେ ନା ମୁଁ ହଉଛି କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ହଉଛି ଭୋକ୍ତା ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଆସିଯିବ ଆହୁରି କ୍ଲିୟରଲି ଆସିଯିବ ମୁଁ ମୋଟା ମୁଁ ପତଳା ମୁଁ ଗୋରା ମୁଁ କଳା ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଁ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର वर्ण अनुसार फिर आश्रम अनुसार सब स्टार्ट है फिर मो विद्यार्थी मो पति मो पत्नी औपाधिक बुझन द्वय शरीर द्वय माने विक्षेपर दो नहीं ए आवरण दीटा नहीं अभान पादक सप्त पादक कथा कहनी दीटा शरीर कह स्थूल सूक्ष्म शरीर देह देह अच्छे ना तो ये जो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ଆଉ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବାହାରିଲା सूक्ष्म शरीर ବାହାରିଲା ଏବଂ ତା ପ୍ରତି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେଲା ଦେନ୍ ଚିଦାଭାସ ବାହାରିଲା ସାକ୍ଷିଣ ପୁରତ ଭାନम लिंग देहेन संयुक्तम लिंग देह ମାନେ फिर ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବି ଅଛି ବିନା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରହିପାରିବନି ଯଦି ପାଣି ବୋଲି କହୁଛୁ ମାନେ କଳସ ଅଛି ପାତ୍ର ଅଛି ଠିକ दीटा कने इसे आयतन पानीटा रहिबो केमते लिंग देह रहिबो कोटे स्थिर शरीर रे लिंग देहेन संयुक्त माने लिंग देह रे जो रिफ्लेक्ट होची तो बिना पात्र रे पानी ही रही परिबन रिफ्लेक्ट केमते हो तो देह द्वय स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर तो सूक्ष्म शरीर रे स्थूल शरीर और आयतन विशिष्ट रे तुरंत रिफ्लेक्शन हो रिफ्लेक्शन ही चिदाभास और से चिदाभास को ही जीव कहा जाए ये ही विक्षेप देहद्वय चिदाभास रूप विज्ञेय ईरित आकु जान विक्षेप ये ही विक्षेप एवं कर्तृत्वाद अखिल शोक बंधक संसार का कर्तृत्वाद अखिल शोक संसार नाम कर्तृत्व आदि समस्त शोक अखिल शोक कर्तृत्व आदि अर्थात कर्ता फिर भोक्ता आदि से कर्ता बस निज को कर्ता भोक्ता मानवा ही विक्षेप अब ये कौन कर शोक प्रदाह शोक अज्ञान आवरण विक्षेप तो विक्षेप जो 6 नंबर आसला शोक सेटा शोक मोक्ष तो सेटा आसीगो दूर केमती हम शोक शोक मोक्ष केमती हम परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान नहीं डायरेक्ट परोक्ष ज्ञान प्राप्त करिया नहीं डायरेक्ट अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो परोक्ष ज्ञान रही नहीं बहुत लोग पाठ पढ़ते नहीं से पूर्व जन्म परोक्ष ही जाइए बर्तमान आवश्यक नहीं परोक्ष काम दे दौर निजे निजे
तो ये विक्षेप स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर चिदाभास ये नहीं कि काम स्थूल शरीर कौन अन्नमय कोश सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोश मनोमय कोश आनंद माने विज्ञानमय कोश माने बुद्धि और कारणमय कारण शरीर आनंदमय कोश ये भी दिए रही देन चिदाभास चिदाभास ही विक्षेप शोकेस स्पॉटलाइट और थरे चिदाभास जीवात्मा आसला शोक नहीं कि आसीबो से देन ये शोक दूर करिया पाई उपाय देखो ये तीनटा जाक बंधन आवरण अज्ञान आवरण विक्षेप बर्तमान परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान शोक निवृत्ति एवं निरंकुश तृप्ति ये होची मुक्ति कारण मुक्ति स्थायी ये कथाटी बतौछन 37 गला वर्तमान आउ टे कहउछन कोन कि 38 रे कोन अज्ञान एवं आवरण ये जो दो अवस्था विक्षेप पूर्वर थी 1 मिनिट कौन 37 कहले ये चिदाभास ही विक्षेप हाँ तो चिदाभास विक्षेप जिते है शुणु क्वेश्चन चिदाभास ही विक्षेप ना हो तो तीन आपण टेबुल कर दियंतु घेरा कर दियंतु घेरा फर्स्ट नंबर 1 गोल कर दियंतु गोल 1 रे अज्ञान को रख नंबर 2 रे आवरण को रख नंबर 3 रे विक्षेप को रख तो से एतिकी जीवा तापर 4 5 6 7 अच्छे ये जो चिदाभास को विक्षेप कहले 3 नंबर तो चिदाभास आसिला जाके 3 नंबर रे तो आपण एपटे कहते चिदाभास रे ही अवस्था 1 नंबर 2 नंबर चिदाभास आसिला तो निजे 3 नंबर रे तो अज्ञान और आवरण रहा केमती कारण से आसुची 3 नंबर रे ना एक रे नहीं एक रे अज्ञान रे नहीं कि आवरण रे नहीं तो फिर अज्ञान और आवरण कहा को क्वेश्चन तो ठीक तो बुझू छे ना अज्ञानमावृतिश्चैते अज्ञानमावृतिश्चेते विक्षेपात् प्राक् प्रसिद्ध्यतः विक्षेपात् प्राक् प्रसिद्ध्यतः यद्यप्यथाप्यवस्थेते यद्यप्यथाप्यवस्थेते विक्षेपस्यैव नात्मनः विक्षेपसैव नात्मनः यद्यपि अज्ञानम आवृत्ति ही च एते विक्षेपात् प्राक् प्रसिद्ध्यतः यद्यपि विक्षेप पूर्वरु अज्ञान एवं आवरण हुए एटा प्रसिद्ध अछि किंतु ये जीवात्मा रही चिदाभास रही ये दोनों अवस्था कोटा अज्ञान एंड आवरण जदियो 3 नंबर रे चिदाभास देखा जाउछि कारण साक्षिण पुरत भानम लिंग देहेन संयुक्तम चितिच्छाया समावेश जीव स्याद व्यावहारिक व्यावहारिक जीव रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस देखा जीव जेतବେଳେ से सब प्रोसेस हो तो प्रोसेस माने विक्षेप तेणु विक्षेप समय रे ही चिदाभास उत्पन्न हला तेणु अज्ञान एंड आवरण तेणु अज्ञान एंड आवरण चिदाभास कहीं हम ताले ब्रह्म को न जानिबा त ब्रह्म कहबा उचित
କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ବାବା, ବ୍ରହ୍ମର କେବେ ଅଜ୍ଞାନ ହୁଏନି, ବ୍ରହ୍ମର କେବେ ଆବରଣ ହୁଏନି। ଅଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଆବରଣ ବ୍ରହ୍ମ ଆଶ୍ରୟ, ବ୍ରହ୍ମ ଯୋଗୁ ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମ ନଥିଲେ କୋଉ କାହାର ଅଜ୍ଞାନ ହବ? କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅଜ୍ଞାନ କରିପାରିବନି ସେ। ଜୀବାତ୍ମା କୁ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ କରିପାରିବ। ଜୀବାତ୍ମା ହିଁ କହିବ କି ମୁଁ ଜାଣୁନି, ବ୍ରହ୍ମ କହିବ କି ମୁଁ ଜାଣୁନି। ବ୍ରହ୍ମ ତ ସ୍ୱୟଂ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ତା ପାଖରେ ମୁଁ ଜାଣୁନି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାରର ଅଲଗା ଅଲଗା ଏସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି। ଅନ୍ଧକାର ଯୋଗୁ ଭୂତ, ଅନ୍ଧକାର ଯୋଗୁ ସର୍ପ, ଅନ୍ଧକାର ଯୋଗୁ ଚୋର, ଅନ୍ଧକାର ଯୋଗୁ ଏସବୁ ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁ ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଗରେ ଅନ୍ଧକାର, ଚୋର, ଭୂତ, ସର୍ପ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କହ ହଟେ ସର୍ପ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ରସିକୁ ହିଁ ଜାଣିଛି, ଖମ୍ବକୁ ହିଁ ଜାଣିଛି, ଭୂତକୁ ଜାଣିନି। ଭୂତର, ସର୍ପ ଆଦି ଦେବକୁ ଅନ୍ଧକାର ଦରକାର। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାର ହିଁ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବନରେ आवरण नहीं, अज्ञान नहीं। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଲିୟର କରିଦିଅ କି ଚିଦାଭାସର ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ ଆଣ୍ଡ ଆବରଣ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। ଆପଣ ହିଁ ଘେରା କରିକି ମତେ ଶିଖେଇଲେ କଣ? ନମ୍ବର 1 ଅଜ୍ଞାନ, ଚିଦାଭାସ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଜ୍ଞାନରେ ଚିଦାଭାସ ଆସିନି। ନମ୍ବର 2 ଆବରଣ, ଚିଦାଭାସ ଅଛି କି ନାହିଁ? ନମ୍ବର 3 ହଉଛି विक्षेप, ये ही चिदाभास। ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବର 3 ରେ ଚିଦାଭାସ, ନମ୍ବର 1 and 2 ରେ ଚିଦାଭାସ ହିଁ ନାହିଁ ତ ଚିଦାଭାସ ର କେମିତି ହବ? अच्छा, फिर तो ये अज्ञान एंड आवरण कहाँ? चिदाभास रो। चिदाभास को अज्ञान एंड आवरण हुए तो वर्तमान तो चलिए यस, अज्ञान आवरण चिदाभास रे अवस्था माना सतरे 39 बुझुछन तो? स्वामीजी निद आसलाणी, निद आसी बुझीपार ना शोनाती कि ठीक शोई गरम हो गरम के ठंडा निद टी होनी पानी पीदे फिर जीवा पड़ुची फिर बेसी खाईदे असुविधा एमती अवस्था इच्छा हो शुणापी नुह कि शुणुचु आप कठिन हो बुझाऊँ बुझी होनी कौन बुझी होनी जीवात्मार 7टी अवस्था बर्तमान 3टा अवस्था विषय चलती 4टा को छाड़ दियो अज्ञान आवरण विक्षेप कहते आपण कहले चिदाभासी विक्षेप से जो चिदाभास विक्षेप ताले चिदाभास अज्ञान एंड आवरण केमती है फिर कहते नहीं ये अज्ञान एंड आवरण जो अवस्था है चिदाभास आत्मार नुह आत्मा को हटाई देले अच्छा आत्मार नुह लॉजिक कौन सूर्य आगे अंधकार ना अंधकार ना तो अंधकार जिते सब विक्षेप ना ताले ये अज्ञान रही नहीं तो किंतु एगेन आमर तो पॉइंट रहा ना चिदाभास 3 नंबर आसुची 1 और 2 रे तो चिदाभास आसीनी ठीक बेटा तो ये जो अज्ञान एंड आवरण 1 और 2 कथाटा भल आउ थे शुण ये 1 और 2टा कहार चिदाभास रही केमती बुझाऊँ विक्षेपोत्पत्तित पूर्वम् विक्षेपोत्पतितः पूर्वम् अपि विक्षेप संस्कृतिः अपि विक्षेप संस्कृतिः अस्त्येव तदवस्थात्वम् अस्त्येव तदवस्थात्वम् अविरुद्धं ततस्तयोः अविरुद्धं ततस्तयोः 1 घेरा 1 अज्ञान, सेकंड घेरा आवरण, थर्ड घेरा विक्षेप एवं विक्षेप को चिदाभास को नहीं कि आसिक से बसैले एवं कहले कि
ଏ ଦିଟାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା। ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଚିଦାଭାସର 7ଟା ଅବସ୍ଥା, ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଚିଦାଭାସ ବିକ୍ଷେପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ହେଲା ନା ଗୁରୁଜୀ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ତୁ ତୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦିବାଜି କାହିଁ କରୁଛୁ, ଏତେ ବିଗୁଡ। ମୁଁ ବିଗୁଡୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ। ଆରେ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବାତ୍ମା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ହଁ, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛୁ। କୋଉ ଘେରାରେ ଦେଖିଲୁ? ବିକ୍ଷେପ ଘେରାରେ। ହଁ, କୁହ। ବିକ୍ଷେପ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ବିନା ଆବରଣରେ ବିନା ଅଜ୍ଞାନରେ ହବ କି? ନା। ତ ଯେତେବେଳେ ଚିଦାଭାସ ହଉଛି, ତାର ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ ଏଣ୍ଡ ଆବରଣ ଅଛି ପୂର୍ବରୁ। ଓହୋ, ପୂର୍ବ ଶବ୍ଦଟା ଆସିଗଲା ନା। ହଁ, ଆକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସଂସ୍କାର। ବୀଜ ରୂପରେ ରହିଛି। କ୍ଲିୟର? ବୀଜ ରୂପରେ ରହିଛି। ଏବେ ଯେମିତି ମୁଁ 25 ତାରିଖରେ ଆମର ଦିନେଶ ବାବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଯିବି। ହଠାତ୍ କହିଲେ କି ସ୍ୱାମୀଜୀ ବେଟର ନ ଆସନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ନୌକରଣେ କଣ ଛୁଟିରେ ଯାଉଛି। ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। 25ରେ ମୁଁ ରାତିରେ ଆସିବି, କଣ ଟିକେ ଖାଇଦବା। ହୁଁ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଖାଉନି, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇଦବା। ଲଞ୍ଚ ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ ପଞ୍ଚକୁଲା ପଳେଇଯିବା। ପଞ୍ଚକୁଲା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଡାକନ୍ତି ବି, ସେଇଠି ଲଞ୍ଚ କରିଦବା। ବାକି ରହିଲା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ନହେଲେ ପରିବା କାଟିବା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ନା। ହଁ, ବାସ୍ ଡାଲି ଅଛି, ଭାତ ଅଛି। ନା। ହଁ, ଖିଚଡି କରିବା। ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ କାହିଁକି କରିବେ? ବୋଲେ ଆରେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛୁ? ହେଲା, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଳ୍ପନା କରିକି କହୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବା ମୋର ଆଶ୍ରମରେ ବା କାହା ଘରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲି ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାହା କାହା ଘରେ ରହନି, କଳ୍ପନା ଘରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆରପି ରାୟ ଘରେ, and, ଅର୍ପିତା ଘରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଘରେ ମୁଁ ରହେ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ଘରେ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। 4ଟାରୁ ଉଠିଲି, ହେଲା। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବସେଇଛି, ଉବଲଉଛି। ହଠାତ୍ ଆସିଗଲେ ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ, ଯାହା ଘରେ ଅଛି ସିଏ ଆସିବ ନା। समझ क्या कर रहे हो? चाय बना रहा हूं। से आके देखले स्वामी जी, क्या झूठ बोल रहे हो? ना क्या, पानी तो उबल रहा है, अब पानी उबल रहा है, चाय कहाँ बना? क्लियर? तुम कहो अरे बाबा, पानी उबलेगा तभी तो चाय बनेगा, चाय पत्ता डालेंगे, ये करेंगे। एटा दिटा अवस्था, किंतु कहला बेलू कौन हो उत्तर अवस्था कह चा हो। हिंदी रे आपण जानते, आम ओडिया रे कौन कहते चाउल एवं भात। चाउल कौन? भातर पूर्व अवस्था। भात कौन? चाउलर पर अवस्था। किंतु हिंदी रे ना वो दोनों को ही चावल। भात बहुत कम यूज, बिहारी आदि रे भात कहते। उत्तर प्रदेश पंजाब रे तो ये खाऊ ना करुछन माने चाउल बहुत कम खाते। बहुत रे किए दिन बेले खाती, टिके रातिर तो बिल्कुल नहीं। किए रातिर खाती, दिन बेले बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल होनी है ना। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବୋଧେ ଚାଉଳ ଚାଉଳ ଚାवल चावल चावल, भात बहुत कम यूज करते हैं। दाल भात ମାନେ ହିଁ बंगाल, ओडिशा, अन्य तले मध्य केरला आदि दिटा अवस्था ना, गोटे हूँ चाउल आ गोटे हूँ भात। से चाउल भी आहरी दिटा, गोटे हूँ अरुआ चाउल, गोटे हूँ उषुना चाउल। आजिकल छुआ नुआ नुआ छुआ, ये कंप्यूटर छुआ, मोबाइल छुआ जानी उषुना चाउल कौन, अरुआ चाउल कौन। कह जाए उषुना चाउल बेटर। पिला बेले आम मैंने तो उषुना चाउल खाऊ। अरुआ चाउल जस्ट गोटे देखा सुंदर, बासमती आदि सब, किंतु सब पड़ी जाइए सारा। से जाओ, तेणु जमी दीटा शब्द हूँ, गोटे पूर्व अवस्था, गोटे हूँ पर अवस्था। चिदाभास सिना एबे आसिला विक्षेपर, तार अज्ञान तो अनादि, ता पूर्वर थिला। श्लोक देखो,
विक्षेप उत्पत्तः पूर्वमपि विक्षेप संस्कृतिः विक्षेप उत्पत्ति पूर्वरु विक्षेपर संस्कार थिला कि नहीं ए विक्षेपर संस्कारित अज्ञान एंड आवरण एणु विक्षेप आवरण एवं अज्ञान एवं आवरण विक्षेप पूर्वर थिला कारण विक्षेप तेबे जाई संभव सर्प तेबे जाई संभव जे रस्सी हबो रस्सीर आधार रे ही सर्प ही पारिबो नले हबनी तो एणु एई अवस्था जीवात्मार ही आत्मार नुह काली आउर टिके देखिया ओके देन वर्तमान आगे जीवे ताले ब्रह्मर रोल कौन आत्मार रोल कौन है कहबा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।